چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں کا رمضان، روشن جیسے تارے بچوں کا رمضان۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد نہال آزاد طاری۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک بڑا ہی شاندار پروگرام جس کا نام ہے بچوں کا رمضان۔ پیارے پیارے بچوں، آپ نے پچھلے سال بھی ہمارے اس پروگرام کو بہت پسند کیا تھا اور امید ہے کہ اس سال بھی پسند کریں گے اور ہمیں اس کا فیڈ بیک بھی دیں گے۔ تو پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ہمارے ساتھ ہیں دو ٹیمیں جن کے درمیان ہوگا مقابلہ، اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس دفعہ ہم نے آپ کے لیے کچھ نئے سیگمنٹس کا اضافہ بھی کیا ہے۔ چلے میں آپ کو آج کے اپنے سیگمنٹس بتاتا چلوں۔ سب سے پہلے ہم کریں گے اپنے پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے، اس کے بعد قصیدہ برد شریف کے چند اشعار، پھر اس کے بعد نعت پڑھی جائے گی۔ ہمارا مستقبل سیگمنٹ ہوگا اور جواب پر انعام کے ساتھ ہوگا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے علاوہ ہمارا سیگمنٹ ہوگا تیزی دکھائیں، اور آمنا سامنا بھی ایک بڑا ہی پیارا سیگمنٹ ہے جس میں ہماری مکی ٹیم اور ہماری مدنی ٹیم آپس میں کریں گی مقابلہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج کے ہمارے خصوصی مہمان ہمیں سنائیں گے ایک پیاری سی کہانی۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جو ہے قرأت۔ رمضان رمضان رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ انس بھائی؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمد للہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں نہال بھائی؟ الحمد للہ رب العالمین علی کل حال۔ جی انس بھائی، آج آپ کون سی سورت کی تلاوت کریں گے؟ سورہ قریش۔ جی پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے بڑے ہی ادب سے بیٹھنا ہے کیونکہ جہاں پہ تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے وہاں پہ اللہ عز و جل کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت بسم الله الرحمن الرحيم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔
خوف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. انس بھائی، آپ نے اتنی پیاری تلاوت قرآن پاک فرمائی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے. ماشاء اللہ، انس بھائی نے اتنی پیاری تلاوت کری. مدنی چینل کے ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی. چلیں اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جو ہے قصیدہ بردہ شریف. رمضان رمضان رمضان. ہمارے سیگمنٹ قصیدہ بردہ شریف کے لیے تشریف لائے ہیں ہمارے سید حمزہ علی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی، تو مدنی چینل کے ناظرین، شروع کرتے ہیں اپنا سیگمنٹ جس کا نام ہے قصیدہ بردہ شریف. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جینے کی طرف دیکھ، نہ مرنے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل کو تو مدینے کی طرف دیکھ. کیا بات مدینے کی، اے ساری دنیا کاتی ہے خیرات مدینے کی. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کی منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شگے گھر دوسرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میرے مولا صدا تحیت و درود کے گجرے اپنے محبوب پر جو ہے تیری تخلیق بہتری، اسی محبوب سے وابستہ امید
شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل هول من الأغوال مقتحم، مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ کا ہمارے اس پروگرام میں آنے کا بہت بہت شکریہ۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، جو ہے آمنا سامنا۔ رمضان رمضان رمضان، اس میں ہماری دو ٹیمیں، مکی ٹیم اور مدنی ٹیم موجود ہے۔ اس میں سے ہر ٹیم میں 2 کنٹیسٹنٹ نے پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ اس میں میں ان سے 15 سوال پوچھوں گا اور انہوں نے بزر بجا کر جوابات دینے ہوں گے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ صحیح جواب پر 2 پوائنٹس اور غلط جواب پر -1 ہو جائے گا۔ لیکن یاد رہے، اگر سوال کے بیچ میں بزر دبا دیا تو سوال بھی مکمل کرنا پڑے گا اور جواب بھی دینا پڑے گا۔ اس میں جو ٹیم ونر ہوگی وہ کوالیفائی کر جائے گی اگلے راؤنڈ میں۔ اب ہم بڑھتے ہیں مکی ٹیم کی جانب، دیکھتے ہیں آج ہمارے ساتھ کون موجود ہے۔ جی آپ کا نام؟ میرا نام محمد احمد رضا بن محمد اسماعیل ہے۔ جی بھائی آپ کا نام؟ میرا نام محمد علی بن ندیم ہے۔ علی بھائی۔ اب ہم بڑھتے ہیں مدنی ٹیم کی جانب۔ جی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ۔ نام کیا ہے آپ کا؟ میرا نام عبداللہ محمد آصف ہے۔ عبداللہ بھائی جی؟ میرا نام مکاشا اتاری ہے۔ چلیں اب شروع کرتے ہیں ہم سوالات کا سلسلہ۔ جی کس کروٹ؟ جی مکی ٹیم۔ کس کروٹ لیٹنا سنت ہے؟ جی سوال تو آپ نے صحیح پکڑا ہے، جواب دیں۔ دائیں کروٹ میں لیٹنا سنت ہے۔ دائیں کروٹ مطلب؟ سیدھی۔ اور آپ نے بولا سیدھی کروٹ۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ مکی ٹیم نے تو حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس۔ اب دیکھتے ہیں کہ مدنی ٹیم بھی 2 پوائنٹس حاصل کرتی ہے یا نہیں۔ افضل ترین، جی اکاشا بھائی نے پہلے بیل بجائیے۔ افضل ترین پہاڑ کون سا ہے؟ افضل ترین پہاڑ کون سا ہے؟ جی جواب؟ اس کا جواب ہے سب سے افضل پہاڑ طور ہے۔ آپ کا سوال بھی بالکل درست ہے اور جواب بھی بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ چلے اب میں ایک اور سوال پوچھتا ہوں کہ کس ہاتھ سے کھانا پینا سنت ہے؟ جی ٹیم مدنی سے اکاشا بھائی۔
किस हाथ से खाना पीना सुन्नत है? सीधे हाथ से खाना पीना सुन्नत है। जी हाँ, सीधे हाथ से खाना पीना सुन्नत है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। कुरान पाक की किस सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं? जी टीम मक्की से अहमद भाई। सूरह तौबा। सूरह तौबा, आपने जवाब दिया सूरह तौबा और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी तो एक और सवाल पूछता हूँ मैं। जी हुजूर अलैहिस्सलाम के परदादा का नाम क्या था? जी टीम मदनी से उकाशा भाई। हज़रत हाशिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। क्या लगता है आपको कि जो उकाशा भाई ने जवाब दिया वो ठीक है? आपको क्या लगता है? जी जब सभी कह रहे हैं ठीक है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी अगला सवाल। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाले ज़ाहिरी किस सन हिजरी में हुआ? जी टीम मक्की। 11 सिने हिजरी। जी अब्दुल्ला भाई आपको क्या लगता है? जी इनका जवाब दुरुस्त है। जी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी तो मैं अगला सवाल पूछता हूँ। कौम समूद की तरफ कौन से नबी अलैहिस्सलाम को भेजा गया? जी टीम मदनी से अब्दुल्ला भाई। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा तो अब मैं सवाल पूछता हूँ कि कुरान पाक में आयात की तादाद कितनी है? जी टीम मक्की। 6666। आपने जवाब दिया 6666। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अच्छा अहमद भाई आपका क्या ख्याल है, कौन सी टीम जीतेगी, आपकी या मदनी टीम? वक्त बताएगा। वक्त बताएगा। चलें अब मैं एक और सवाल पूछता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने गारे सौर में कितने दिन क़याम फरमाया? जी टीम मदनी। 3 दिन। आपने जवाब दिया हुजूर अलैहिस्सलाम ने 3 दिन गारे सौर में क़याम फरमाया और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम के कौन से सहाबी नाहक गोर के तौर पर ज़्यादा मशहूर है? जी टीम मदनी। हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपने जवाब दिया हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो काशा भाई क्या लगता है? ये बिल्कुल सही जवाब है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी टीम मक्की आपको क्या हो गया, आपकी बजर क्यों नहीं बजी इस दफ़ा? पता नहीं। आपको जवाब मालूम नहीं था? था मालूम। अच्छा आपको मालूम था, फिर आपने बजर क्यों नहीं बजाई? चलें कोई बात नहीं, अभी तो मुकाबला बाकी है। जी अगला सवाल। मनो सलवा किस नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत पर उतारा गया? इस बार भी बजर टीम मदनी ने ही बजाई। जी टीम मदनी से ओकाशा भाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर। आपने कहा कि मनो सलवा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर उतारा गया, तो क्या लगता है अब्दुल्ला भाई इनका जवाब ठीक है? जी। आपको क्या लगता है अली भाई? ठीक है। जी तो कह रहे हैं ये दोनों तो कि दुरुस्त है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। हर रकअत में कितनी बार सजदा फर्ज है? मेरे को तो लगता है टीम मक्की ने पहले बजर बजाई है। आपका क्या ख्याल है अली भाई, आप लोगों ने बजाई है या मदनी टीम? हम लोग ने बजाई। अच्छा और आपका क्या ख्याल है? ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया। अच्छा तो मुझे लग रहा है कि मक्की टीम ने पहले बजर बजाई है, जबकि मदनी टीम के कंटेस्टेंट का कहना है कि उन्होंने पहले बजर बजाई है। तो आए हमारी मजलिस से पूछ लेते हैं कि किसने पहले बैल बजाई है। और हमारी मजलिस ने फैसला किया है कि टीम मक्की ने पहले बैल बजाई है। जी पहले सवाल मुकम्मल करेंगे। हर रकत में सजदा कितनी बार फर्ज है? आपने कहा हर रकात में कितनी बार सजदा फर्ज है। चलें जवाब दें। 2 बार। 2 बार। आपका कहना है कि हर रकात में 2 बार सजदा फर्ज है और आपका कहना बिल्कुल ठीक है। चलें अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। किस वक्त सुरमा लगाना सुन्नत मुबारका है? जी मेरे को तो लग रहा है टीम मदनी ने पहले बजर बजाई। जी सवाल भी पूरा करें और जवाब भी पूरा दें। किस वक्त सुरमा लगाना सुन्नत है? इसका जवाब है हदीस पाक से मालूम हुआ है कि सुरमा सोते वक्त इस्तेमाल करना सुन्नत है। आपने कहा कि हदीस पाक से मालूम हुआ कि सुरमा सोते वक्त लगाना सुन्नत है और आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो काशा भाई आपको क्या लगता है, आपकी टीम आगे बढ़ रही है या मदनी टीम तेजी से आगे बढ़ रही है?
हमारी टीम मदनी आगे बढ़ रही है। अच्छा अली भाई, आपको क्या लगता है? अच्छा, तो मक्की टीम का भी कहना है कि मदनी टीम ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रही है। चले, मुकाबला तो अभी थोड़ा बाकी है। अगला सवाल, ज़कात कब फ़र्ज हुई? जी, मक्की टीम से अहमद रज़ा भाई। ज़कात 2 सिने हिजरी रोज़ों से पहले फ़र्ज हुई। आपने कहा ज़कात 2 हिजरी में रोज़ों से पहले फ़र्ज हुई, और आपका कहना बिल्कुल ठीक है, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। एक और सवाल पूछते हैं, मरियम किस ज़बान का लफ्ज़ है? मैंने अभी सवाल तो आधा ही पढ़ा था। जी, टीम मदनी से उकाशा भाई ने आधे सवाल पे ही पहल बजा दी है। मरियम किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके क्या मायने हैं? आपने सवाल तो सही कहा, लेकिन अब जवाब दें। मरियम इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मायना आबिदा के हैं। इसके मायना आबिदा के हैं। अली भाई, आपका क्या कहना है? तो आपने कहा कि मरियम इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मायने आबिदा के हैं। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मैं तो बढ़ रहा हूँ अपने अगले सवाल की जानिब, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सी टीम आज आगे बढ़ेगी? क्योंकि आखिरी सवाल है, इसके बाद ही फैसला होगा, और मजलिस भी हमारी स्कोरिंग कर रही है कि कौन आगे जा रहा है और कौन रुखसत होने वाला है। अभी तक तो हम ही आगे हैं। अच्छा, आप कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि अभी तक तो हम ही आगे हैं। जी। आपका क्या कहना है अली भाई? पीछे हैं वो आगे। आपका भी कहना ये है कि हम पीछे हैं और मदनी टीम आगे है। तो देखते हैं, अब हम आखिरी सवाल के बाद ही बताएंगे कि कौन आगे और कौन पीछे है। और मैं आपको एक बात बताता चलूं कि ये तो आज हमारा पहला प्रोग्राम है, इसमें हम आपको रियायत दे रहे हैं कि आप सवाल आधा सुने और बेल बजा दें, लेकिन आगे के प्रोग्राम में ऐसा नहीं होगा। आगे के प्रोग्राम में आपने पूरा सवाल सुनना है, फिर उसके बाद ही बजर बजानी है। सही है? सही है? अब मैं बढ़ रहा हूँ आखिरी सवाल की जानिब। जो सवाल है, हजरत सईदना याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद का क्या नाम है? जी, मक्की टीम इस दफ़ा कामयाब हुई है बजर बजाने में। जी, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम है। आपने जवाब दिया कि हज़रत सईदना याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हज़रत सईदना इसहाक़ अलैहिस्सलाम है। तो अब्दुल्ला भाई, आपको क्या लगता है, इनका जवाब दुरुस्त है? इनका जवाब दुरुस्त है। अब्दुल्ला भाई तो कह रहे हैं इनका जवाब दुरुस्त है। तो आखिरी सवाल मैंने पूछा था कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या है, और आपने जवाब दिया हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सवाल तो मदनी चैनल के नाज़रीन मुकम्मल हो चुके हैं। अब बारी है स्कोरिंग की कि किस टीम ने कितने नंबर हासिल किए हैं। आपको क्या लगता है, आपने कितने नंबर हासिल किए होंगे? मैंने 16 पॉइंट्स हासिल किए हैं। 16 पॉइंट्स आपका कहना है, और आपका क्या कहना है? 14 पॉइंट्स। 14 पॉइंट्स। अच्छा, अहमद रज़ा भाई, आपकी टीम ने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं, कुछ आपको अंदाज़ा है? 14-12। आप कह रहे हैं 14। जी, अली भाई? अली भाई ने गिने नहीं थे, अली भाई को अंदाज़ा नहीं है। आज के जो सेगमेंट की टीम विनर होगी उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे के प्रोग्राम में वो क्वालिफाई कर जाएगी। तो आज की विनर टीम जो है वो है टीम मदनी। रोशन जैसे तारे, बच्चों का रमजान 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 रमजान। टीम मदनी के थे 20 पॉइंट्स और टीम मक्की के थे 10 पॉइंट्स। लेकिन आपने ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि आप अगले राउंड की तरफ क्वालिफाई कर चुके हैं। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, ये था हमारा सेगमेंट आमना सामना, जिसमें मुकाबला भी हुआ और एक टीम विनर रही और एक टीम रुखसत हो रही है। लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि हमारा अगला सेगमेंट जिसका नाम है हमारा मुस्तकबिल। रमजान रमजान रमजान। किसी रोजदार को अफ्तार कराना एक बहुत बड़ी नेकी है। रमजान में नफिल का सवाब फर्ज के बराबर और एक फर्ज का सवाब 70 फर्जों के बराबर मिलता है। माहे सियाम की आमद, मरहबा। वही रमजान जिसका पहला शेर रहमत, दूसरा शेर मग़फ़िरत और तीसरा शेर जहन्नुम से आज़ादी का है। फैज़ाने रमजान जारी रहेगा। अल्लाह पाक माहे रमजान में बेशुमार गुनाहगारों को बख्श देता है। अल्लाह पाक माहे रमजान में
بے شمار گناہگاروں کو بخش دیتا ہے۔ عبادتوں کا مہینہ ماہ رمضان، خوش آمدید اے ماہ رمضان۔ رمضان کا مہینہ ہے بہت ہی مبارک مہینہ، میں اس رمضان میں بہت ساری نیکیاں کروں گا۔ مرحبا ماہ رمضان۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ ہمارا مستقبل سیگمنٹ میں ہمارے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچوں نے ویڈیوز بنا کر ہمارے پروگرام میں بھیجی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آئیے چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آج کی دعا۔ تو پہلے دیکھتے ہیں کہ آج کی دعا کون سی ہے۔ رمضان رمضان رمضان، آج ہم آپ کو کھانے سے پہلے کی دعا سکھائیں گے۔ آؤ دعا سیکھیں، آج ہم سیکھیں گے بچوں کھانے کی دعا۔ کھانے سے پہلے نہ تم اس کو بھولنا، آج ہم سیکھیں گے بچوں کھانے کی دعا۔ کھانے سے پہلے نہ تم اس کو بھولنا۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو پھر پڑھنا بسم اللہ اولہ وآخرہ، بسم اللہ اولہ وآخرہ۔ جی تو ناظرین، آپ نے دیکھی آج کی دعا۔ جی بھائی، آپ کو یاد ہوئی؟ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ جی آپ نے بالکل ٹھیک سنائی۔ اچھا، اگر ہم کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا بھول جائیں یا پھر یہ دعا پڑھنا بھول جائیں تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ تو آپ نے کہا بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھنا چاہیے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کو دعا یاد نہیں ہوئی تو میں ایک دفعہ دہرا رہا ہوں، آپ اسے ضرور یاد کر لیں۔ بسم اللہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ، برکت اللہ، بسم اللہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ، برکت اللہ، بسم اللہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ، برکت اللہ۔ اگر کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا بھول جائیں یا یہ دعا پڑھنا بھول جائیں تو یہ پڑھنا چاہیے، بسم اللہ بسم اللہ اولہ اولہ وآخرہ، وآخرہ، بسم اللہ بسم اللہ اولہ اولہ وآخرہ، وآخرہ، بسم اللہ بسم اللہ اولہ اولہ وآخرہ۔ وآخرہ۔ لیکن بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ دعا جب پڑھنی ہے جب آپ کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا بھول جائیں یا یہ جو ہم نے پہلے دعا سکھائی یہ پڑھنا بھول جائیں، تو آپ نے بیچ میں اگر آپ کو یاد آئے تو یہ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہم نے دعا بھی سیکھ لی۔ اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جو ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ رمضان رمضان رمضان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ حسین بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ کون سی نعت سنانے والے ہیں آج آپ؟ آج میں آپ کو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا کلام ایک کاش تصور میں مدینے کی گلی نعت سناؤں گا۔ ماشاء اللہ، جی شروع کیجیے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح،
صلی علی محمد اے کاش تصور میں مدینے کی گلی گو یاد محمد کی میرے دل میں بسی گو یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو اے کاش تصور میں مدینے کی گلی گو کاش تصور میں مدینے کی گلی گو یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو اللہ کرم ایسا کرے تجھ بھی جگہ میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ بھی جگہ میں دعوت اسلام میں تیرے دو میں مچی گو اے دعوت اسلام میں تیری دھوم میں مچی گو اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر میرے روتے ہوئے طیبہ کو بارات چلی گو میرے روتے ہوئے طیبہ کو بارات چلی گو اللہ کی رغبت سے تو جنت ہی ملے گی اللہ کی رغبت سے تو جنت ہی ملے گی اے کاش مغلے میں جگہ ان کے ملی گو اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی گو عطار ہمارا ہے عطار ہمارا ہے سرے حشر اس کا دستے شگبت سے یہی چٹھی ملی گو دستے شگبت سے یہی چٹھی ملی گو اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو سبحان اللہ
वाह हुसैन भाई, बड़ा मज़ा आया, आपने बड़ी प्यारी नात पढ़ी। अल्लाह ताला आपको इसकी बरकत अता फरमाए। आप हमारे प्रोग्राम में आए, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसमें सुनेंगे हम कहानी हमारे खुसूसी मेहमान से, यानी यूसुफ सलीम भाई से। रमजान रमजान रमजान। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व कैसे हैं बरकातुहू। निहाल भाई, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं यूसुफ भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। माशाल्लाह रमज़ान मुबारक की बहारें हैं और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला ये रमज़ान मुबारक हमारे लिए बाबरकत साबित हो, हम इसमें खूब अल्लाह की इबादत कर सकें। और हम अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला दुनिया भर में इस वक्त जितने भी मरीज़ हैं, अल्लाह उन सबको सेहत, तंदुरुस्ती, आफियत अता फरमाए। जी निहाल भाई, तो आपको कहानी सुननी है? जी जी, कहानी सुनिए। अरे वाह, सिर्फ आप सुनेंगे या हसन रज़ा भी सुनेगा कहानी? अच्छा, हसन रज़ा ने भी सुननी है और जुनैद ने भी सुननी है। चलें जनाब, मुझे बताएं कि पुराने ज़माने की कहानी सुनाऊं या कोई नए ज़माने की? पुराने ज़माने। पुराने ज़माने की सुनाऊं? चलें जनाब, तो आप सबको पुराने ज़माने की कहानी सुनाता हूँ। और कहानी भी बड़ी मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग भी है और इसमें बहुत खूबसूरत सा सबक भी है। कहानी कुछ यूँ है कि बहुत पुराने ज़माने में समंदर के किनारे कुछ टर्टल्स का ख़ानदान आबाद था। टर्टल समझते क्या होता है? कछुए। कछुए, जी देखें आप लोगों ने कछुए? हाँ, कछुए जो है ना, उनका पूरा ख़ानदान आबाद था। अब वहाँ पर ये रहते थे, खाते थे, पीते थे। एक बार इस ख़ानदान ने फैसला किया कि हम पिकनिक मनाने जाते हैं। क्या मनाने जाते हैं? पिकनिक। तो अब टर्टल्स के ख़ानदान ने फैसला किया कि हम कहाँ जाएंगे? पिकनिक। पिकनिक पर, पिकनिक मनाने जाएंगे। अब फैसला तो हो गया, लेकिन आपको पता है कि टर्टल्स जो होते हैं ये बड़े सुस्त होते हैं। कुदरती तौर पर इनकी रफ्तार जो है ना बड़ी स्लो होती है, इतना ज़्यादा चल तो स्पीड से नहीं सकते। इन्होंने जब ये फैसला किया ना, साथ ये भी फैसला किया कि हम वन डे पिकनिक मनाएंगे, यानी सुबह जाएंगे, शाम को वापस आ जाएंगे, लौट के घर आ जाएंगे। अच्छा जनाब, अब इन्होंने चलना शुरू किया पिकनिक के लिए। पहले तो ढेर सारा सामान जमा किया, जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती है, बर्तन भी लिए, खाने पकाने के लिए चीज़ें भी ली, तो कुछ सब्ज़ी भी ली, कुछ फ्रूट्स भी लिए। सारी चीज़ें लेकर ये निकल पड़े पिकनिक के लिए। पहले तो चलते 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 कई घंटे तक तो इन्होंने स्पॉट की तलाश की कि किसी अच्छी जगह पर हमें पिकनिक मनाने के लिए कोई जगह मिल जाए। चंद घंटों के बाद इन्हें एक अच्छी सी जगह मिल गई। अब जब अच्छी सी जगह मिल गई तो अब उन्होंने वहाँ पर सारा अपना इंतज़ाम करना शुरू किया। खाना पकाना एक तरफ शुरू किया, एक तरफ जनाब खेल कूद शुरू हो गया, तो एक तरफ कुछ कछुए जो है वो स्विमिंग करना शुरू हो गए। थोड़ी देर हुई तो सबको लगी तेज़ भूख। अब जब भूख लगी तो सबको क्या याद आया? खाना। क्या याद आता है भाई? खाना। सबको खाना याद आया। सारे मिल गए और एक जगह पर बड़ा सा दस्तरखान लगाया गया। दस्तरखान लगाकर जितना खाना पका था वो सारी चीज़ें सजा दी गई, लेकिन एक चीज़ की मिसिंग थी और वो था नमक। क्या चीज़? नमक। नमक भूल गए थे। अब भूख भी लगी थी, लेकिन साथ चूंकि पिकनिक मनाने आए थे, एंजॉय करने आए थे, तो सबने कहा नहीं जनाब, बगैर नमक के तो ये पिकनिक का मज़ा सारा किरकिरा हो जाएगा, हमें खाने का तो मज़ा ही नहीं आएगा, टेस्ट ही नहीं आएगा, बगैर नमक के खाने का मज़ा आएगा ही नहीं। लिहाजा हम में से कोई जाए और पहले नमक लेकर आए। अब ये फैसला तो हो गया कि कोई जाएगा और निहाल भाई क्या लेकर आएगा? नमक लेके आएगा। नमक लेके आएगा, लेकिन जाएगा कौन? ये भी तो एक मसला था ना, क्योंकि इतने घंटे इन्होंने यहाँ पर इस स्पॉट को तलाश करने में लगा दिए थे। घर भी काफ़ी दूर था। काफ़ी देर तक तो बहस चलती रही कि जनाब कौन जाएगा, ये जाएगा, वो कहे नहीं छोटा जाएगा, छोटा कहे नहीं जनाब मोटा जाएगा, मोटा कहे नहीं जनाब बड़ा जाएगा। तो इस तरीके से पहले तो बहस चलती रही। बिल आखिर एक फ़ैसला हुआ कि एक यंग टर्टल जो था वो कदरे तेज़ चलता था, वो जाएगा और वो जाकर नमक लेकर आएगा। चले जनाब, ये फ़ैसला तो हो गया, लेकिन उस टर्टल ने साथ ये शर्त लगा दी कि मैं जाऊंगा ज़रूर, लेकिन जब तक मैं वापस नहीं आऊं तब तक आप में से कोई भी खाना शुरू नहीं करेगा, खाना नहीं खाएगा, ये शर्त है मेरी। सबने कहा ठीक है जनाब, आप जब तक नहीं आते हम खाना शुरू नहीं करेंगे, लेकिन आपने भी आना जल्दी है। उसने कहा ठीक है। अब ये शर्त लगाकर वो वहाँ से चलना शुरू हुआ। अब वो चला तो गया, लेकिन वक्त गुजरता गया। पहले तो 2 घंटे गुजरे, चूँकि 2 घंटे घर तो दूर नहीं था,
2 घंटे गुजरे तो सबको तशवीश हुई कि जनाब 2 घंटे हो गए अब तक ये नहीं आया। सब एक दूसरे आपस में बातें करने लगे। अब खेल खेल कर भी, दूसरी एक्टिविटीज़ कर कर के भी वक्त टाइम पास ना हो। एक तरफ भूख लगी हुई, दूसरी तरफ जनाब नमक का इंतज़ार, तीसरी तरफ खाना जो था वो भी ठंडा हो रहा था। करते करते 3 घंटे हुए, 4 घंटे गुजर गए। जब 4 घंटे गुजर गए ना, जो बूढ़े और बुजुर्ग टर्टल्स थे ना, उनका सब्र का पैमाना हो गया लबरेज। उन्होंने कहा जनाब अब हम मज़ीद इंतज़ार नहीं करेंगे और अब हम खाना खाएंगे। सब ने फैसला किया जनाब वाकई टाइम तो बहुत गुजर गया है, 4 घंटे गुजर गए, 4 घंटे हमने इसका इंतज़ार किया, अब तक ये नहीं आया, चलो अब हम खाना खा लेते हैं। अब जैसे ही ख़ानदान पूरा दस्तरखान पे बैठा ना खाने के लिए, और जैसे ही खाना शुरू किया, वो जो यंग टर्टल था ना, वो एक पेड़ के पीछे से निकला और निकल कर कहने लगा, देखा मुझे पता था तुम लोग मेरा इंतज़ार नहीं करोगे और तुम लोग मेरे बगैर ही खाना शुरू कर दोगे। अब मैं नहीं जा रहा नमक लेने के लिए। अब जनाब सारे ख़ानदान वालों ने अपना सर पकड़ लिया कि तुम गए भी नहीं और हमारा वक्त भी इतना ज़ाया कर दिया। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इस इंतज़ार में होते हैं कि कोई गलती करे और हम उसको पकड़ लें। ये गिलास तुमने तोड़ा है ना, अच्छा अब मैं अम्मी को ज़रूर बताऊंगा। वो इसी टो में लगे रहते हैं, इंतज़ार में रहते हैं कि कोई गलती करे तो हम उसे क्या कर लें, पकड़ लें। इस कहानी में और भी हमें कई सारे सबक मिलते हैं, लेकिन हमें एक तो कछुओं की तरह सुस्त रवि नहीं दिखानी चाहिए, ठीक है। अगर हमारे बड़े हमें कोई काम दें तो हमें फौरी तौर पे वो काम कर लेना चाहिए, ठीक है ना। और अगर किसी से वादा किया है तो अब उस प्रॉमिस को भी निभाना चाहिए, पूरा करना चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अच्छे अंदाज के साथ ज़िंदगी गुजारने की सादत और तौफीक नसीब फरमाए। और इससे हमें सबक क्या मिला कि हमें ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए, बिलखुसूस कछुओं की तरह, टर्टल्स की तरह सुस्ती नहीं दिखानी चाहिए, बल्कि अगर हमारे बड़े बुजुर्ग हमें कोई काम दें तो उसे फौरी तौर पर कर लेना चाहिए, ठीक है। और अगर कभी किसी से कोई प्रॉमिस करें तो उस प्रॉमिस को भी नहीं तोड़ना चाहिए, हर काम वक्त पर कर लेना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अच्छे अंदाज के साथ ज़िंदगी गुजारने की सादत और तौफीक नसीब फरमाए। माशा अल्लाह, यूसुफ भाई ने इतनी प्यारी कहानी सुनाई। उम्मीद है आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसका सबक ये था कि हमें बुजुर्गों की बात माननी चाहिए और कछुओं की तरह सुस्ती नहीं दिखानी चाहिए, बल्कि काम अपने वक्त पे करना चाहिए। तो यूसुफ भाई हमारे प्रोग्राम में आए, इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। आपने बुलाया, आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबको बरकत दे। माशाअल्लाह इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और अल्लाह हमें इस रमज़ानुल मुबारक में खूब इबादत करने की सादत और तौफीक नसीब फरमाए, आमीन इंशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम बच्चों का रमज़ान का वक्त हुआ ख़त्म। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपसे मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में, लेकिन उससे पहले यूसुफ भाई से कहते हैं कि कोई दुआ भी करा दें आप। चलें जनाब, दुआ कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनश शैतान, या मुजीरु या मुजीरु या मुजीर। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। या हल्लल मुश्किलात हल्लिल मुश्किलातिना या अल्लाह। या दाफ़िअल बलियात इदफ़अ बलियातिना या अल्लाह। या क़ादियल हाजात इक़दी हाजातिना या अल्लाह। या इलाहुल आलमीन या अरहमर राहिमीन, हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह रमज़ान मुबारक की बरकत से हमारे वालिदैन की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, हमारे भाई बहनों की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह इस रमज़ान मुबारक में भी और आइंदा भी खूब तेरी इबादत करने की सआदत और तौफीक नसीब फरमा। ए अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत बड़ी परेशान है, अल्लाह करम फरमा, सबकी परेशानियाँ दूर कर दे, सबकी बीमारियाँ दूर कर दे। ए मौला करीम प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े ए अल्लाह जो मांगा वो भी अता कर दे, जो ना मांग सके हमारे हक़ में बेहतर हो बिन मांगे अता फरमा। मैं क्यों कहूँ मुझको ये अता हो वो अता हो, वो दे के हमेशा मेरे घर भर का भला हो। ईमान पैदे मौत मदीने की गली में, मदफन मेरा महबूब के कदमों में बना दे।
کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ملیں گے آپ سے اگلے پروگرام میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں کا رمضان، روشن جیسے تارے بچوں کا رمضان، بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔